ना मिले गौर से। वंदे अनंत अद्भुतमीश्वरं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसादा सा भक्ति शास्त्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासुरभ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार बड़ा ही करुणामय अवतार है। बहुत सुंदर सुंदर वो लीला कर रहे हैं। तो महाप्रभु का अवतार हरिनाम संकीर्तन प्रचार के लिए है। बिफोर द एडवेंट महाप्रभु arranged the situation that there was eclipse. In eclipse, everybody was chanting the holy name. And then when he was small child also, then he will cry and everybody will cry many ways. Only when he chanted Hare Krishna, everybody chanted Hari Hari or some names of the Lord, then the child started pacified and you laugh. And sometime Mahaprabhu will start dancing when they will do the kirtan. And Mahaprabhu will go outside the home and pick up some fruits or bananas or some sweet sundae from the people and bring it and give to home those who were chanting. And then Mahaprabhu was given the name. What two names he was given? Nimai was given by the local ladies and one mother named Vishwambar, because they said, the Brahmanas said that this name is there in his Kundli and this proves that he will maintain the whole universe by giving them the holy name. So that's what everybody needs. And after the appearance of Mahaprabhu, they found in their life there was no famine and a lot of ill disturbance had stopped. Then when Mahaprabhu became a little more bigger, then he started walking, and then he went to the bank of Ganga, and there two thieves tried to saw the beautiful bangles on the hand of Mahaprabhu, golden bangles and chain. They were very much, they felt greed, and they gave him little kela and sandesh, etc. Said, "Shall come on, child." And by the mystic power of the Lord, what had happened? That they took the Lord where? To his own home. So in this incarnation, Lord is saying that even if somebody approaches. So I was talking yesterday, 2 days before to Nisanthu. So he was telling, Haldar Maharaj had come to Bhubaneswar, so he was giving class. He was telling, Chaitanya Mahaprabhu is giving mercy to everyone, but he didn't give mercy to 3 people. I said, which are 3 people? I knew only one person. That those who are offenders. ये पंखा ऐसा करना चाहिए सिस्टम जिसमें आवाज हो. And purchase a fan which didn't cause what? ऐसा पंखा लगाए जिससे आवाज नहीं, ताकि ठंडा भी लगे डिवोटीज को. हाँ, बोले ऐसा ही पंखा अच्छा आता होगा. बोला कि ताकि भक्तों को ठंडा भी लगे और आवाज भी नहीं. समझ रहे?
तो चैतन्य महाप्रभु 3 लोगों को कृपा नहीं देते। किन 3 लोगों को? ऑफेंडर तो मुझे पता था, और 2 लोगों का मैं नाम सुना, वो भी पता था मेरे को, लेकिन मैं डाउटफुल था। तो बोले 3 तरह के लोग को नहीं देते कृपा। एक कपटी लोग को नहीं देते, कोई फॉलन है बोलेगा मैं फॉलन तो भगवान को कृपा देते, बोला। और किसको नहीं देते? अपराधी को नहीं देते, जो भक्तों का अपराध करते। और तीसरा है जो विषयों में आसक्त। तो बोला अरे तो होपे नहीं है, अरे तब तो मतलब सब क्या करेंगे। लाइक छोटा हरिदास ठाकुर जो थे माता जी के पास, उनका अट्रैक्टेड हो गए, तुम आपने कृपा नहीं किया। तो बोला भाई तो पूरा खतरनाक हो गया, जो सेल्स गेट में अटैच उसको कृपा नहीं मिलेगा, जो कपटी उसको नहीं मिलेगा, जो अपराध तो फिर बचा कौन? तो किसी ने पूछा कि फिर बचे कौन? हम लोग सब भक्त, लेकिन हम लोग भी सही है, भोग वासना है हमारे इधर। बोला इसीलिए वो बोलते हैं वन हैज टू एसोसिएट विद डिवोटी। साधु संग करेगा तो साधु संग में उसका कपट खत्म हो जाएगा। in presence of good sadhus his kapat will cannot last, समझ रहे हैं? एंड साधु के संग में रहेगा तो उसका धीरे धीरे विषय वासना भी खत्म। लेकिन एक लोग को कृपा नहीं मिलेगा, अपराधी। बोला ठीक है, सही, ये तो मुझे ही पता था। तो when we associate with devotees by their mercy we can even give up our duplicitousness and our mental attachment. So anyhow, Chaitanya Mahaprabhu is very kind, and he even gave mercy to whom? These 2 thieves who had come to him for stealing his bangles, but they were not aparadhi. So that's why Mahaprabhu, even though they had come to steal from him, वो लोग भगवान का सामान चुराने के लिए, फिर भी भगवान ने उनका सेवा स्वीकार किया। डू यू इमेजिन, भगवान को आप केला खिलाए होंगे, भगवान आपके हाथ से केला खाए, कैन यू इमेजिन? हम लोग तो ऑफरिंग रखते और उसके बाद घंटी बजाते तब खाते भगवान, लेकिन वो चोर कहां से भगवान ने केला खाया, संदेश खाया? थिंक अबाउट इट। वो चोर तो 100% डिलीवर हो गया। तो दैट thief mostly will be delivered. So why this is happening? So Mahaprabhu is so merciful, so he want to show that somebody is aparadhi, he will not deliver, but somebody not aparadhi, he may be grossest of the sinners, but soon he will be delivered of his sinful desires also. उसके बाद महाप्रभु के घर में, तो महाप्रभु का अवतार पूरा छुपा हुआ अवतार है, और कोई बहुत भाग्यशाली वही चैतन्य महाप्रभु कृपा को समझ सकता। तो इसीलिए चैतन्य नवदीप धाम महात्म्य वर्णन आता है पहले चैप्टर के 13 नंबर श्लोक की। चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्या है? गूढ़ अवतार। इट्स नॉट इजीली मैनिफेस्ट टू द पब्लिक। कोई बहुत ही भाग्यशाली है तो उसको चैतन्य तत्व पता चले, समझ रहे हैं? अदरवाइज चैतन्य तत्व पता चलना वेरी रेयर। इसलिए चैतन्य नवदीप धाम महात्म्य भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी चैतन्य इसको नहीं समझ पा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कृपा को। 12-13 नंबर श्लोक में आता है कैसे, 5 नंबर में आता है ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा आदि नवदीप मंडले महिमा अपार, ब्रह्मा आदि नहीं जाने तो वर्ण साध्यकार। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते, अनंत शेष भी नहीं समझ पाते। 6 नंबर में आता है सहस्र वदन से वर्णित अक्षम, समझ रहे? वदन सहस्र 1000 हेडेड अनंत शेष इज नॉट एबल टू टेल। बोलते शिव जी भी अनेबल है। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं 7 नंबर महादेव सत्यवटे नवदीप महिमानन देव देव महादेव नाही पायन। तो 12 नंबर 13 नंबर आता है तो मैं क्या बताऊं? तो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का लीला जो है 13 नंबर श्लोक में देखिए, गूढ़ लीला। गूढ़ लीला शास्त्रीय गूढ़ रूपे उक्त है, अभक्तेर जो निर्चित ना हो उदय। तो जो बहुत फॉर्चुनेट नहीं है, जो भक्त नहीं, उसके हृदय में उदित नहीं हो सकता है। बहुत जिसका भक्ति बढ़ गया है उसी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। समझ रहे?
से लीला संबंधे যত गुड़ शास्त्र छिलो माया देवी बहुकाल आच्छादी रखी लो। माया देवी क्या कि उसको छपा के रखी थी, है शास्त्रों में, समझ रहे, शास्त्रों में जगह जगह पर चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम दिया हुआ है, लेकिन माया क्या कर रखी थी, उसको छुपा के। अप्रकट शास्त्र बहु रहे यथा तथा, प्रकट शास्त्र जो चैतन्य कथा से सकल माया देवी पंडित नयन आबारिया रखे गुप्त भावे अनुखन। माया देवी सब शास्त्रों क्या कर रखी थी। तो इसलिए अनलेस वन गेट स्पेशल मर्सी ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द पास्ट टाइम्स ऑफ। चैतन्य महाप्रभु का अवतार गजब का अवतार। आज हम लोग बैठ के भक्ति कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु मर्सी। बिकॉज अदरवाइज जो आदमी पूरा एकदम मेटेरियल लाइफ से पूरा एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है वही भक्ति कर सकता है, वो भी ज्ञानी बनेगा या मुक्ति बनेगा, लेकिन भक्ति करना बहुत रेयर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा से घर घर में लोग क्या कर पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आके बस सुंदर सुंदर लीला के। अब चोर का क्या क्वालिफिकेशन, चोरी करने गया और क्या कर दिया, उसको डिलीवर, उसके हाथ से सेवा ले ली। वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में आता है कैसे एक ब्राह्मण था, वो घुमा करता था, समझ रहे, तो महाप्रभु छोटे बच्चे थे, वो घर में आया तो वैसे ही कल्चर था, कोई भी ब्राह्मण आता तो उसको लोग क्या करते हैं, बोलते आप हमारे घर में आइए, पवित्र कीजिए। मैं थोड़े दिन पहले वॉक कर रहा था तो एक डिवोटी मेरे को अपने घर में ले गया, उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो नया प्लेट लाया प्रसाद, मतलब फल, हम तो बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, तो फल काट के दिए, समझ रहे। तो उनके घर में भी कौन आ गया, गेस्ट, तो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, यहाँ पर गोपाल जी का विग्रह रखते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बोला कि मेरे घर में थोड़ा सा प्रसाद। तो पहले जमाने में ब्राह्मण कहीं खाते नहीं थे, तो ब्राह्मण के घर में वो कुकिंग करके ही खाएंगे, मतलब नहीं तो खाएंगे नहीं, और मोस्टली वो लोग फल खाएंगे। तो बोला कि, तो जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण थे, बोले मेरे घर में आप थोड़ा कुकिंग कर लेंगे और थोड़ा ग्रहण कर लेंगे तो मेरा भाग्य तो। बोले आप मेरे को फल दे दीजिए, हो जाएगा, मेरे को कुछ बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, समझ रहे। जैसे आज उनका कोई एक बगल में भक्त है, उनका पोते का मुख भात है, मतलब, तो बहुत दिन से बोल रहे थे आइए, कल भी सब भक्तों को बुलाए। बोले भाई सब भक्त तो नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन बोले जी तो कुछ, मैं बोला हम कीर्तन कर देंगे, कथा कर देंगे, लेकिन प्रसाद हम लोग यहीं पर ले लेंगे। बोले नहीं नहीं लेना पड़ेगा, सब लोग लीजिए। बोला नहीं नहीं, सब लोग कॉलेज ले जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद, अरे तो आप लोग क्लिप ले लीजिए। बोला फलूल दे दी बस, उतना काफी। बोला नहीं नहीं, अच्छा से बनाया गया, ये है वो है, वैष्णव लोग भी बनाया है। तो लाइक दैट पीपल वांट कि उनके घर में कौन प्रसाद ले, वैष्णव प्रसाद ले। तो इतने बड़े वैष्णव आए थे, वो तो सब तैर्थिक ब्राह्मण थे, घूमते रहते सब जगह, भगवान का भजन करते रहते। तो उन जगन्नाथ मिश्रा उनके चेहरे को देखे बोले आप मेरे घर में था प्रसाद। तो फिर देश में मान गए, ठीक है। तो उन्होंने किचन विचन क्लीन कर दिया बढ़िया से, और उसको क्या किया, कुकिंग किया। तो ब्राह्मण के घर में कुकिंग क्यों करते थे पहले, क्योंकि ब्राह्मण लोग ऑलमोस्ट वैष्णव होते, सबके घर में शालिग्राम शिला होता, और वो लोग खाना बनाए किसको ऑफर करते थे, शालिग्राम को ऑफर करते। तो मतलब वैष्णव के घर में या ब्राह्मण के घर में वो क्या मिले, प्रसाद मिले। बाकी घरों में कोई श्योरिटी नहीं थी। फिर भी जो तैर्थिक ब्राह्मण होते थे, सन्यासी टाइप, वो कहीं कहीं नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हर ब्राह्मण के घर में खाएंगे, जब प्योरिटी देखेंगे तभी वो। तो बोले ठीक है, तो कुकिंग की अपना हाथ से, और जैसे भगवान को ऑफर किए तब तक चैतन्य महाप्रभु आके क्या किया उसको, और आंख बंद है, नमो ब्राह्मण देवाय गौर ब्राह्मणिताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय। तो यूजुअली भगवान को डायरेक्ट ऑफर होता था, मंत्र यही था, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण। बट हम लोग जो ऑफरिंग करते हैं, तो ऑल आवर कृष्णा को एक्टिविटीज विद दूध सु चैतन्य महाप्रभु। जैसे हम लोग जब ऑफरिंग करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु मंत्र बोलते हैं, ऑफरिंग किया ना हम लोग, हाँ हम लोग मंत्र चैतन्य महाप्रभु बोलते कि नहीं, नमो ब्राह्मण देवाय, तो नमो महावदन न्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो ऑल्दो ऑफरिंग के लिए आप डायरेक्ट भगवान कृष्ण को ऑफर कर सकते, बट वी ऑफर टू लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड देन वी ऑफर थ्रू प्रभुपाद आल्सो, बिकॉज प्रभुपाद इज वेरी मर्सीफुल। हम लोग जैसे मलेच्छों को भी उन्होंने भक्ति करने का। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या नियम पता है, चैतन्य महाप्रभु एक बार बोले पूरी में कि केवल लखपति लोग के घर में खाएंगे हम,
तो अद्वैत आचार्य बोले, सब लोग घबरा गए, भाई लखपति कौन है यहाँ पे? उस समय लाख रुपया होना समझ रहे, 500 साल पहले, अरबपति। तो सब भक्त लोग निराश हो गए, हमारे पास इतना पैसा नहीं। तो सब भक्त लोग निराश, महाप्रभु कैसे हम लोग आपको सेवा करें, कैसे, हम लोग तो लखपति नहीं। वो लखपति मतलब जो 1 लाख नाम जप करता है रोज, वो लखपति। तो 1 लाख मतलब 64 वाला, समझ रहे? अब 64 वाला कैसे करेंगे हम लोग, तो वो भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ठीक है हम लोग, इसलिए हम लोग ऑफरिंग करते क्या बोलते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्टाय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बट 1 लाख नाम जप करके आया, बोले 4 दिन में कर लेते 1 हफ्ता में हो जाता, तो हफ्ते में 1 के बार होगा, तो संडे फिर जाना है इसको मंदिर में खा के आ जाना। तो जो भी है, तो वो ब्राह्मण का ऑफरिंग, क्योंकि प्रेमी भक्त था तो भगवान तुरंत आके कहते, और वो बेचारा घबरा गया कि छोटा बच्चा भगवान का भोग आप ऑफरिंग करें, और आके मान लीजिए कोई छोटा बच्चा आ जाए और आप भगवान को ऑफरिंग करो, आप आंख बंद करके आप आंख खोले देखे कि ईख अपने मुंह में डाल रहा है समझ रहे? तो वैसे ऊपर चिल्लाने लगा, आय क्या कर दिया यार, सब बड़ा गुस्सा है, बच्चा बदमाशी करता, लिमिट हो गया। बच्चा बदमाशी कर, लेकिन गेस्ट के सामने बदमाशी कर तो बहुत गुस्सा आता है। और इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है आश्रम में, समझ रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में, लेकिन एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन बहुत बुरा लगता। सबके सामने प्यूरिफाई करने लगा, अंदर तो करता ही था। तब बड़ा उसको गुस्सा आया, तो मारने के लिए दौड़े। तो बोले, बच्चा को क्या मारे, बच्चा को समझता नहीं है, बच्चा को मार के क्या तो अपना हीरोगिरी दिखा रहेगा, छोड़ दो बच्चा को। तो फिर छोड़ दिए। फिर दोबारा ऑफरिंग, तब तो माता जी लोग लेके खिलाने लगी बेटा, उसको बोले, हे बेटा, अरे तू बाहर का ब्राह्मण का खा रहा है, कोई भरोसा उसका क्या जाते हैं, कहाँ घूमता पता है क्या, समझ रहे? तू ब्राह्मण का जाति चला जाएगा। बोला, मैं ग्वाला हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरे को ब्राह्मण का खाने में बड़ा मजा आता है ही। और वो तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, इनको समझ में। और बोले, हम तो कृष्ण है, हम तो ग्वाला है, हम सब ब्राह्मण लोग के हाथ से खाने में बड़ा, भक्तों के हाथ से खाने में मजा आता है। इनको समझा नहीं कि बच्चा पागल है कुछ। और फिर खेलने लगे, और सब बोले कि बच्चा खेल रहा है, कोई टेंशन। और बाहर से गेट भी बंद कर दिए। और तब फिर वो ब्राह्मण दोबारा ऑफरिंग किया, समझ रहे? उसको मना के बोला, लग रहा भगवान नहीं चाहते कि आज मैं खाऊं। बोला, तो बोला जगन्नाथ में सब दुखी हो कि मेरे घर में वैष्णव आया, खा नहीं रहे। तो रोने लगे। तो बोले ठीक है। शाम को आए थे 7 बजे, अब 9 बज गया, ऑफरिंग करते 9:30 10। फिर जैसे मंत्रा पढ़े, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण देवाय जगताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः, आँख खोले देखे वो पहुंच गया हमारा बचवा, और आँख से खाने लगा। फिर चिल्लाने लगा, आय आय क्या कर दिया रे बचवा। अब फिर जगन्नाथ बोले, बचवा नाक में दम छाड़े एकदम डंडा लेके मार। तब सब लोग बोला, अरे बच्चा है, बच्चा समझता नहीं, जो समझा उसको मार के समझाने से हो जाएगा कुछ क्या। तो फिर और ब्राह्मण बोला, मेरा कसम आप फिर छोड़ दी, बच्चा है क्या करे। अब भगवान नहीं चाह रहे कि मैं आज खाऊं। अब देखिए 10:30 बज गया, अब कितना बज रात को खाए, आप फल उल दे दीजिए, हो जाए। जगन्नाथ मुंह लटक गया, कहा मेरा बचवा कैसा है, तो झुलिया कहा करे। तो उसके बाद तब तो विश्वरूप आ गए। विश्वरूप आ गए तो विश्वरूप तो एकदम ब्यूटीफुल थे, उनको देख के एकदम ब्राह्मण आकर से, किसका बच्चा है, बोले तो जगन्नाथ मिश्रा का ही बच्चा है, बोले बहुत अच्छा बच्चा है। तब विश्वरूप को जो पता चलो, हाथ जोड़ने लगे, ब्राह्मण हमारा घर पवित्र हो गया कि आप आए, लेकिन आज हमारा भाग्य पूरा बर्बाद हो गया कि आप आ गए, लेकिन हम खिला नहीं पाए, आज हमारा कुल बर्बाद हो जाएगा। ये बोले, नहीं नहीं आप कुछ फल दे दो, हो जाएगा। बोले, नहीं नहीं आप नहीं खाएंगे तो मेरा पूरा। तो फिर विश्वरूप रिक्वेस्ट करने को फिर ठीक बोले, अभी रात का 12 बज गया, 10:30 11 बज गया, 3 दोपहर 1:30 पहर बीत गया है, 10:30 11 बजे, इतना रात को क्या कुकिंग करेंगे। बोले, नहीं कोई बात, आप पूरा रात भर भी कुकिंग कर सकते, कोई दिक्कत, कोई वेदों में ऐसा नियम नहीं कि नहीं कर सकते। तो बेचारे उसको पसंद, बोले ठीक है चलो। तो रात को 11 बजे कुकिंग चालू। और इधर इस बार जगन्नाथ मिश्रा डंडा लेके गेट के बाहर खड़े हो गए बेटा उसको। और तब तक माता ये लोग खिलाए थी और सो गए नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु। बोला टेंशन मत ली, बचवा एकदम हुलचुलिया, अब उसका हुलचुल बंद हो गया, बस हो गया, समझ रहे। और फिर वो ब्राह्मण क्या क्या रेडी करके ऑफरिंग किया, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च गो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय, जैसे ऑफरिंग किया। जो लोग सब जगा हुआ था, भगवान का योग निद्रा के प्रभाव सब सो गए।
सब लोग सो गया, एक ही आदमी जगा रहा, कौन? एक चैतन्य महाप्रभु और एक ब्राह्मण। और ब्राह्मण नमो ब्राह्मण जय गो ब्राह्मण जय जगत जय कृष्ण जय गोविंदाय नमः, चिल्लाया हाय हाय। और जब चिल्लाया तो सोचा कोई आगे में कोई आ ही नहीं रहा है। तो प्रसाद हो गया, अरे कहा हो गया, अरे कोई आ ही नहीं रहा, हम चिल्ला रहे हाय हाय हाय। ए बचवा, अब बचवा से बात कर, पहले बचवा से बात नहीं करता। ए बचवा तुम क्या किया, मेरा ऑफरिंग खराब कर दिया, क्या करता है तुम क्यों खा लिया, तो तुम क्यों बुलाया? हमको कोई प्रेम से बुलाता आ जाता मतलब। तो भगवान अपना षडभुज रूप समझ रहे, शंख चक्र गदा पद्म से कदम, और देखा तो कहा बका, मतलब कि मेरे को पिछले जन्म में भी तुम कृष्ण जन्म में जब गोकुल में आया था, तुम गोकुल में भी तुम ब्राह्मण बन के आया था, और मेरे को तुम्हारा हाथ से खाना बहुत अच्छा, वहां पर भी मैं खाता था, समझ रहे। और तुम्हें जन्म में भी मेरे आया तो तुम्हारे प्रेम से मैं, मुझे भक्तों को प्रेम से खिलाया बहुत अच्छा। अब वो तो पगला गया एकदम, लेकिन किसी को बताएगा नहीं, समझ रहे कि हम भगवान है, बताएगा तो हरि बोल कर देंगे। वो बेचारा समझ रहे हक्का बक्का रह गया, फिर भगवान पकड़ हो गए, तो वो खाना महाप्रसाद हो गया, वो ऐसे से लिपने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तब तो जगन्नाथ मिश्रा उठ के बोले क्या हुआ, बोला सक्सेसफुल सक्सेसफुल। और देखिए पूरा शरीर में लगा ले, मतलब बहुत खुश है ब्राह्मण जी। तो सब लोग खुश हो गए। तो इस प्रकार से भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट करे, लेकिन उनको समझ नहीं, उस ब्राह्मण को सामने प्रकट हो गए, लेकिन कोई, और ब्राह्मण बताना चाहते हैं जगन्नाथ मिश्रा अरे ये भगवान है, लेकिन तो चलो टेप लगा ले। तो रोज आता था महाप्रभु को देखने के लिए, बट उसको कंडीशन था कि अष्टभुज रूप दिखाया भगवान ने उसको। उसके बाद महाप्रभु अब उनका हाथे कड़ी हो गया, हाथे कड़ी मतलब हाथ में चौक दे दिया गया, समझ रहे। महाप्रभु का खगा लिखने लगे, 2 दिन में महाप्रभु एकदम जॉइंट वर्ड सब सीख गए। और महाप्रभु एकदम सबसे पहले क्या गाते थे, महाप्रभु सबसे पहले रोज नाम लेते थे, भगवान का नाम लेते थे, लिखते थे राम कृष्ण गोविंद मुकुंद। हम लोग अपना नाम लिखते, भगवान भी अपना नाम लिखते थे। ये साइकोलॉजी कहाँ से आता था कि हम लोग जब छोटे बच्चे अपना नाम से कॉपी भर देते, कितना मजा आता था ऐसे। कुछ टीचर बोल लगता था चालू हो जाओ, समझ रहे। साइकोलॉजी कहाँ से आता पता है, कौन सिखाया अपना नाम लिखना? भगवान भी अपना नाम लिखते, तो हम लोग भी लिखते, समझ रहे। तो भगवान कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारी लिखते रहते थे, और बहुत जल्दी वो एकदम तेज हो गए। और एक दिन महाप्रभु एकादशी का दिन था, तो रो रहे थे कीर्तन करते करते। तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे, लेकिन कीर्तन करने के बाद भी रो रहे थे। बोले अरे बचवा कीर्तन कर रहे हैं, चुप हो जा। बोले नहीं आज हम चुप नहीं हो। बेटा क्या चाहिए तुमको? बोले एक तो दूर गांव में ना, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गोद्रुम द्वीप तरफ एक जगदीश पंडित और हिरण पंडित रहते, वो लोग आज एकादशी के दिन प्रसाद बनाए। बाकी जगह तो एकादशी के दिन मिलता नहीं मेरे को, समझ रहे। वो लोग बनाया फिश, वो मेरे को चाहिए। मतलब पगला गया है क्या? एकादशी के दिन नॉन एकादशी खाएगा तुम? हाँ, और पूरा तुम घर पवित्र कर देगा, समझ रहे, और आदमी देगा। तो सब लोग माँ डांटने लगे, तुम सब लोग बोला रहे जिसको चुप करने के लिए जो जरूरत हुआ देंगे, हम जाते हैं बात करते। वो लोग पहुंचे उसके पास, उसको बताया तो बोला रे बच्चा वो कैसे बचा? बच्चा तो बड़ा लगता है भगवान विष्णु उसके अंदर अपना लीला कर रहे हैं। उसको पता कैसे चला कि आज हम लोग साल में हर एकादशी को तो इतना बड़ा फीस नहीं करते, आज ही करते, उसको पता कैसे चला? तो वो लोग पूरा आइटम लेके आया और सब महाप्रभु थोड़ा थोड़ा ग्रहण किए। तो इस प्रकार से महाप्रभु बहुत सुंदर लीला कर रहे। उसके बाद महाप्रभु थोड़ा और बड़े हुए, तो रोज स्कूल जाते थे, अपना स्कूल से खेलते हैं समय आके रोज गंगा जाते थे। महाप्रभु एवरी डे विल विजिट, और रोज 6 घंटा गंगा में रहते थे। समझ रहे, 6 आवर एवरी डे विल स्पेंड एट। पढ़ने जाएंगे मान लो सुबह 8, 9 बजे 10 बजे, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के एकदम 12 बजे पहुंच जाएंगे गंगा में, खूब मस्ती करें, समझ रहे। किसी ब्राह्मण का पाँव खींच देंगे, समझ रहे। कोई आदमी अपना वो भोग लगा रहा है, ऐसे नहाने आया और विष्णु के लिए प्लेट में क्या लाता है, सजा के लड्डू तिलक ये सब करके भगवान को चढ़ाने के लाता है मूर्ति को। तो नहा के आता है कि फिर भगवान को भोग लगे, तो भगवान का आसन उसन रेडी करके जाता है, ड्यूटी वर्शिप करने कोई जा रहा है, प्लेट रेडी कर रखा है। और फिर कोई नहाने के आता है कि भगवान को चलाई, तो गंगा में स्नान करके आता, तब तक महाप्रभु उसका आसन में बैठे थे, विष्णु का आसन, और सब अपने से ही लेते, उसको जरूरत नहीं पड़ता था। महाप्रभु खुदे
मालूम आपको भगवान स्वयं आ जाए और आरती बोले लड्डू आप लोग सोचिए हम भोग लगाएंगे, भगवान खुद ही खा ली, तब बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, नहीं भगवान के लिए बोलता है, जिसके लिए भोग लगा वो खा रहा है। पागल, जितना भी पागल होता है कोई, क्या बोल समझ रहे, परेशान कर देते सबको। किसी का गायत्री कर रहा था, गायत्री पाँव खींच लेते, समझ रहे, तो इसके सर के कंधा में चढ़ जाते थे, वो बोलते थे मैं शिव जी हूँ, समझ रहे, ऐसे करके सबको परेशान कर दिया। और माता ये बच्ची लोग कभी कपड़ा बदल देते थे, लड़की लोग इधर कपड़ा रखिए मान लीजिए और फौजी लोग इधर, तो बदल देंगे। अब वो लोग आएगा नहीं हमारा कपड़ा उधर, मतलब परेशान हो जाए। इस प्रकार से एवरीबडी विल बी लाइक। तो एक बार कंप्लेन करने गए, लोग कहाँ गए, चेतन बाबू पिताजी के पास, ये ब्राह्मण जी थोड़ा बचवा को समझाइए, खूब बदमाश, खूब बदमाश, क्या करता पता है। एक बोलता है हमारा धोती टाल लिया, एक बोल रहा हमारा कपड़ा छुपा दिया, एक बोलता है अरे हमारा सर पे बीज डाल दिया खुजली वाला, समझ रहे, एक बोलता है मतलब ऐसे कर मेरा बचवा को चुटी काटता है, समझ रहे, भोग नहीं दे तो गाली देता है, समझ रहे। तो इस प्रकार से हम लोग नाक में दम कर रखा है, समझ रहे, कुछ समझाइए इसको। जगन्नाथ में बोला मेरा बच्चा ऐसा करता है, छोड़ेंगे नहीं इसको। तब तक बच्ची लोग आ गई, बहुत यंग बच्ची लोग, और सची माई को कंप्लेन करे, माँ आप समझाओ अपना बच्चा को, बड़ा बदमाश, खूब बदमाशी करता है, हमको बोलता है शादी करेगी। हम अपना माँ बाप को बोले खूब पिटाई पड़ेगा आपका बच्चा, समझ रहे, खूब आपके साथ क्या करेगा। हमारा तो बाल में क्या डाल दिया, ओकड़ा बीज डाल दिया, ओकड़ा बीज खुजली वाला होता है, समझ रहे हमें कैसा हालत हो यार हमें। और एक जन हम एक बार भोग निवेदन कर रहे थे, तो आके मेरा भोग खाने लगा, बोले क्या कर रहा है, हमको बढ़िया से खिलाओ। बढ़िया भोग क्यों नहीं लाती है, बढ़िया भोग लाएगी हमको नहीं कि हमको खिलाएगी, तुमको हम आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा बढ़िया पति आएगा, समझ रहे हैं, तुम्हारा पूरा एकदम पति खूब अमीर रहेगा, ये वो, समझ रहे। और हमको नहीं देगी ना, तुमको बूढ़ा मिलेगा, बुढ़वा, समझ रहे, और उसका 4 तो ऑलरेडी पत्नी होगा, तो 4 तो सौतन होगा। वो बोलती खा ले बेटा, खा ले बे, तो जो खाना है खा। तो इस प्रकार से महाप्रभु, तो जगन्नाथ मिश्रा पूरा गुस्सा आ गया, मेरा बेटा ऐसा करेगा, उसको नहीं सुधारेंगे तो फिर आज ये कर रहा है, कल बेटा आज तो केवल बोल रहा है, कल लड़की उठा के ले जाएगा तो हम फंस जाएंगे। तो जगन्नाथ मिश्रा डंडा लेकर क्या, बेटा कहाँ है मेरा बेटा। और ये लोग ब्राह्मण लोग प्रेम करते थे, कैसे पता चलेगा कि लोग प्रेम करते थे, कि ये लोग जब पहुंचे वहां पर, जगन्नाथ मिश्रा निकले तो ये लोग दौड़ के पहुंच गया, हमारे लड़की लोग पहुंच गए, और सब बोल दिया अरे भाई भाग भाग तेरा बाप आ रहा है, समझ रहे। अब बोली अगर पिटाई करवा रहा था तो बोली, फिर चेतन बाबू अपना बच्चा को समझा दिए, देखो अभी जा रहा हूं मैं, हाँ तुम यहाँ पर खेला, पूछेगा ना बाप तो बोलते थे आया नहीं, क्या बोलते रहेगा, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ट्रेनिंग पीपल हाउ टू टेल दैट, समझ रहे हैं, अनट्रुथ, समझ रहे हैं, परम सत्य ट्रेनिंग दे रहे झूठ बोलने का। अद्भुत है परम सत्य, है कि नहीं। परम सत्य क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे झूठ बोलना है, कि मेरा बाप आएगा तो बोल देना आज तो आया नहीं, हम लोग भी उसी का इंतजार करें। सब बोला हाँ टेंशन मतलब तुम्हारी मर्यादा में हम लोग, समझ रहे, हम लोग भी तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट है, टेंशन मत ले तुम। वो चला गया, तब तक जगन्नाथ मिश्रा किधर जाओ दिमाग, हाँ देखा बहुत देर, किधर गया, बोलो निमाई आज तो आया नहीं, स्कूल से डायरेक्ट घर चला गया, हम लोग भी उसी का इंतजार करें, हम लोग तो बॉस है, समझ रहे, हमारा गुंडा लीडर नहीं आएगा तो मजा नहीं आ रहा है, वो आएगा तो मजा आएगा। तब तक वो बराबर हो, आपका बचवा बदमाश है, समझ रहे, वो पहले सबको फॉर्मूला बिठा के गया, समझ रहे, और आपका डर से भाग गया, समझ रहे, अगली बार आएगा पकड़ाएगा तो आपका हाथ ले लेके आएंगे। फिर वो लोग हंसने लगा कि एक्चुअली में हम लोग कोई कंप्लेन करने आपके पास, आप कितने भाग्यशाली, आपको ऐसा पुत्र हुआ, ऐसा भाग्य, वो आपका बच्चा हमारे साथ 1000 लाखों बदमाशी भी करे, अपराध करे, हम लोग बुरा, ये हमको जान से ही प्यारा है बच्चा। तो इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं कि इवन इफ योर निमाय डज थाउजेंड्स ऑफ अपराध, लैक्स ऑफ अपराध, हमको बुरा, आई थिंक चैप्टर 6 के 108 श्लोक में आता है कि तुम्हार निमाय 6 चैप्टर का, शायद 6 चैप्टर का
108 श्लोका का मोस्ट, कि वो लोग खुद बोल रहे हैं कि आपका निमाई हमको इतना प्रिय है, बिकॉज दे आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। तो वहां पर बता रहे 107 में है और 107 में है कि कोटि अपराध यदि विश्वामर करे तबु ना तारे खुईबान हृदय ऊपर, हम लोग को फिर भी बुरा नहीं लगता। कोटि अपराध भी करेगा तो हमको अच्छा ही लगेगा। फिर बोलते हैं कि जन्मे जन्मे किसी की जन्म जन्मांतर तक अगर अच्छी भक्ति रही होगी, जन्मे जन्म नेक्स्ट जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त यही सब जौन, ये सब उत्तम बुद्धि। यहाँ ये उत्तम बुद्धि है कि भगवान कितना भी हमारे साथ बुरा करे हम लोग कंप्लेन न करें। ऐसा भाव होना, इसको बोलते हैं गोपियों का भाव। हम लोग रोज गाते ना शिक्षाष्टकम में, आसली सेवा पाद्रता, कि भगवान चाहे मेरे को गोली मारे, चाहे मेरे को किक करे, मेरे साथ जो भी करे, मैं उनका एक साथ भक्ति करूं। मेरे को नरक जाना पड़े उनकी सेवा के लिए, फिर भी मेरे को दिक्कत। तो ऐसा भाव शुद्ध भक्ति का भाव होता है। और जिसके अंदर ऐसा भाव आ गया ना, उसको भगवान पे परिचय हो जाता, उसके दास बन जाते। एक वन है भाव कि भगवान जो करे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मेरे को उल्टा लटका दे, मेरे साथ बुरा करे। ये गोपी लोग बोल रही है कि हम लोग को छोड़ के कि किसी और गोपी के साथ भी जाएगा, फिर भी वी डोंट हैव आश्लित सेवा पाद्रताम पिनस्तुमाम, कि हम लोग पूर्ण रूप से इनके शरण में समर्पित है। उसके बाद क्या है? आश्लित सेवा पाद्रताम पिनस्तुमाम अदर्शनाम, हम लोग को दर्शन नहीं दे रहा है। हम लोग रात दिन रो रहे कृष्णा दर्शन दे दो, फिर भी दर्शन। और अदर्शनाम मर्महताम कतोट यदा सदा लंपटो। तो ये लंपट है, हम लोग बोल रहे हमको दर्शन तो नहीं दे रहा है, और हम लोग जिसे एनवी करते उसी को दर्शन दे रहे। समझ रहे? बाकी गोपियों के साथ ये क्या कर रहा है? संग दे रहा है अपना, लेकिन हम लोग को फिर भी वी विल असिस्ट दोज गोपीज। अगर उसको अच्छा लग रहा है कि दूसरी गोपियों के साथ हम उनकी सेवा करेंगे, कृष्ण को आप खुश दे। तो बोल रहे ऐसी शुद्ध भक्ति होना कि भगवान हमारे साथ जो भी करे, हमारा पांव खींच ले, हमारा ऑफरिंग चुरा ले, जो कर ले, हम लोग उनमें दोष दृष्टि नहीं करें। ये बहुत जन्मों का कोई पुण्य करने के बाद ऐसा भाव आता है। और ब्रजवासियों को ऐसा भाव है, ब्रजवासियों का ये जो नवदीप वासी जो जन्म लिए थे वहां पर, सबका ऐसा भाव था। दे सोल्ड आउट टू कृष्णा। कृष्णा आप कुछ भी कर लीजिए, हम आप ही का सेवक। अभी भी ब्रज में बहुत सारे अच्छे सीन जो ब्रजवासी हैं। ऑनेस्टली एक बार हम लोग का यात्रा गया था महाराज का, तो एक बस का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक छोटी बच्ची आ गई रास्ते में, और बस था तो बड़ा बस था, और छोटी बच्चे, गांव में क्या बच्चे लोग ना, वो लोग ध्यान नहीं देते, घूमते रहते। तो बच्चा बस के नीचे आ गया, वो मर गया, स्पॉट डेड हो गया। छोटी बच्ची थी 4 साल। अब यूजुअली इंडिया में कुछ ऐसा हो जाए, जान बुझे लोग मुर्गी छोड़ता है कि बेटा अगर टच भी हो गया तो 2000-5000 टच है हटाने के, जान बुझे करते हैं। और ये तो इनोसेंटली था, मतलब कोई जान बुझ नहीं हुआ। तो इसमें तो बच्चा तो कुछ तो देना पड़ेगा जुर्माना। पूरे यात्रा कमेटी डर गया, भाई क्या करे नहीं करे, क्या होगा नहीं होगा। तो भक्त लोग नीचे आया, कुछ लोग जो मैनेजर्स थे पूरा परेशान किया, ब्रजवासी भी मतलब नॉट डन। तो सोचे शायद 2-4-5 लाख जुर्माना देना पड़े, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो दे रेडी, जो होगा देखना पड़ेगा। बट तब तो उसकी माँ आ गई बच्ची की, उसकी आंखों में क्या आने लगा बच्ची को देख के। बच्ची मर जाए किसी को कितना बुरा लगेगा, चल रोने लगे। एंड उसके मुख से स्पॉन्टेनियसली निकला, ये राधा रानी का कृपा है। क्या है? राधा रानी is crying separation from the child, but this is a bhav of those devotees that they see everything as Krishna. तो ऐसे कोई कोटि कोटि जन्मों तक भक्ति करता है, तब ऐसा भाव आता है कृष्णा जस्ट जो करो आप में से। तो ब्राह्मणों के साथ भगवान क्या नहीं कर रहे थे, पाँव खींच ले रहे, ये कर रहे वो कर रहे, बट दे हैव नो कंप्लेन, दे आर रिलीजिंग। तो वी कैन प्रे। इसीलिए भगवान उनके घर में जाके उनके चुरा के क्यों खा रहे? किसी घर में आप चुरा के खाएंगे क्या? हाँ खा सकते, जब आप भिखारी है, कुछ नहीं मिल रहा चुरा के खाएंगे। लेकिन आप जब आपके घर में करोड़ों पड़ा है, तो हमारे पास
मालूम बिलोना घी में खाते मान लीजिए सबको, तो हम बाहर क्यों खाएंगे? लेकिन अब कोई बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम हाई क्वालिटी छोड़ के हमको लो क्वालिटी खाना है। So similarly, Lord is already the richest man and everybody want to serve him. He is getting the service of Lakshmi. But why he is going to Navadip Dham and taking the घर में चुरा चुरा खा रहे? क्यों? क्योंकि लोग ऐसा भक्ति था। तो जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त यही सब जौन, ये सब उत्तम भक्ति। हाँ, तो हमें प्रार्थना करें भगवान कब हम में भी ऐसी भक्ति आए कि कृष्ण जो करे वी हैव नो कंप्लेन। तो चैतन्य महाप्रभु घर घर में, हर घर में चोरी किया उन्होंने, हर घर में लोगों को परेशान किया आउट ऑफ लव। और जो कोई नहीं देता था तो उसका बच्चा वो चुटी काटते थे, और कभी कभी क्या करते थे घर को बाहर से बांध देते थे, समझ रहे? और पहले जमाने में टॉयलेट अंदर नहीं होता था, बाहर वो चिल्लाता था अरे वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग बोलते हैं हमको भगवान का भक्त बनना है, जब ये सब लीला होगा तो हम छोड़ के जा रहे हैं भक्ति। उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो भाई थे वो दिन रात अद्वैताचार्य की जगह जाके क्लास सुनते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता, वो भी क्लास देते थे। वो इतने सुंदर थे, वो इतना सुंदर, उनको भौतिकवादी लोग अच्छा नहीं लगते, भौतिक चीजों में बिजी थे। तो अद्वैताचार्य घर में, अद्वैताचार्य को बहुत अच्छा लगता है, जो वो अपने उनके घर में जाता था अद्वैताचार्य अपना पूजा छोड़ के पहले किसको आलिंगन करते थे, विश्वरूप, और घंटों घंटों चर्चा। इधर सच वो सुबह निकलते थे, उसके बाद सची मैया दोपहर को भेजती थी निमाई को, जाओ लेके आओ भैया को। तो निमाई छोटा बच्चा जाएगा और डायरेक्ट पहुंचेगा, और सब लोग देखेंगे, देखते रह जाएंगे उसको, तो कथा बंद हो जाएगा। और पकड़ेगा भैया भैया चलो चलो चलो, उसका धोती पकड़ देगा, मम्मी बुला रहे चलो चलो खाना का टाइम हो, चलो चलो, और वो टांग के ले जाएगा, समझ रहे? तो सब लोग बोलेंगे अरे ये बच्चा तो हम लोग पूरा आकर्षित कर लेता है, समझ रहे? ऐसा क्या है इस बच्चे में? मुझे तो भगवान थे तो आकर्षित तो कर ही लेंगे। बोले हम लोग अपना बच्चा में इतना आ सकते हैं जितना, क्यों? तो उधर पूछते हैं कि इसका कारण क्या था। वृंदावन में भी ऐसा था कि गोपी लोग अपने बच्चे में उतना आ सकते हैं जितना कृष्ण में। बोले क्यों? तो हम बताते कि देखिए ये जो बच्चे थे, दुनिया में किसी से भी हमको प्रेम होता है, क्यों? क्योंकि जब तक उसमें आत्मा होता है, जब आत्मा चला जाता है तो उसका शरीर से कोई प्रेम करता है क्या? बोलते जलाओ जलाओ, राख कर उसको भटाओ। मान लीजिए कोई मर जाता है, कोई बहुत प्रेम करते हैं, जैसे 40 साल 50 साल साथ में थे, कोई पत्नी पति के साथ 45 साल थी, लेकिन जब मर जाता है उसके बिना एक दिन रह नहीं सकती। जब मर गया तो एक दिन एक रात उसके साथ रह नहीं सकती। बच्चा अगले दिन आने वाला था तो बोला गया कि तुम रात भर सो जाओ, कल अंतिम संस्कार। बोले ना हम यहाँ नहीं सोएंगे, वो जाके फ्रेंड के यहाँ सोए। तो क्या ऐसा चला गया कि आकर्षण चला गया? तो वी एक्चुअली हैव आकर्षण फॉर आत्मा, नॉट फॉर बॉडी। बॉडी तो डेड है, अगली है, आत्मा की बिना। तो आत्मा का सुंदरता किससे आता है? कृष्ण से आता है। इसलिए नेचुरली सबका आकर्षण किसके प्रति है? बट वो आकर्षण अभी क्या हो गया है? लस्ट के कारण नहीं फील होता है। बट एज वी सर्व डिवोटीज, एज वी सर्व लॉर्ड, भक्ति करते तो अपने आप वो रस्ट करूं, तब भगवान के प्रति एकदम आकर्षण होकर आदमी खींचा चला। तो इस प्रकार से अब विश्वरूप दिन भर कथा सुनने लगे। अब कोई दिन भर कथा सुनेगा तो क्या होगा? फिर उसको समझ में आ जाएगा भौतिक जगत क्या है, बेकार है। तो रोड में जाते देखते थे लोग भक्ति नहीं कर रहा है, सेंस गेटिंग नहीं कर रहा, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। मतलब हम नहीं रहेंगे दुनिया में। वो सन्यास ले कहाँ चले गए? निकल गए घर से कि हम मेटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहेंगे। और जब ये न्यूज सुना अद्वैताचार्य लोग ने, वो लोग बोले हम लोग भी निकल जाते हैं, हम लोग भी मेटेरियलिस्ट लोग के साथ क्यों रहेंगे, हम लोग भी छोड़ छाड़ के सन्यास ले लेते हैं विश्व। तब आकाशवाणी हुआ, नहीं। अद्वैताचार्य के पास गए, बोले नहीं नहीं, मेरे अंदर से फीलिंग आ रहा है कि भगवान स्वयं प्रकट होंगे और सबको भक्त बना देंगे, हरि बोल। अब यह न्यूज सुन के कि विश्वरूप सन्यास ले लिया, उनके माँ बाप तो गजब ही रो रहे। माँ बाप रोएंगे नहीं? गजब का रो रहे। विश्वरूप इतना सुंदर था, सब गुण संपन्न था, तो जगना इतना रोए कि इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर बोले मैं नहीं करूंगा, नहीं तो सब लोग दुखी हो जाएंगे। बहुत रोए सब। फिर जगन्नाथ मिश्रा एक दिन देखे कि सपने में उन्होंने देखा
अब तक चेतन बाबू का एडुकेशन चालू हो गया, वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं रोज, और खूब बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम एब्जॉर्ब्ड हो जा रहे हैं। अब जब वो भैया गुजर गए उनके, तो वो थोड़ा सीरियस हो गया, बदमाशी थोड़ा उन्हें क्या किया, कम कर दिया। और माँ को बोला, माँ, और डर लगा था कि ये भी कहीं बादशाह छोड़ के नहीं चला, बोले नहीं नहीं मैं रहूंगा, टेंशन मत लो। तो फिर लोगों था, और बढ़िया से माँ को पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लगे तो जगन्नाथ मिश्रा उनको देखते थे और देख के पूरा आकर्षित हो जाते थे, और हम रातों दिन पढ़ रहे। तो फिर उनके पिताजी भगवान से प्रार्थना है, भगवान मेरा बच्चा को माया से बचा के रखिएगा, समझ रहे, उसको माया ना पकड़ ले, हे कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट माई चाइल्ड, ऐसे प्रार्थना करें। फिर एक दिन वो सपने में देखे कि चेतन महाप्रभु आया सपने में, और देखिए उनका सर मुंडा हो गया, समझ रहे, और वो सन्यास का कपड़ा ले लिए, समझ रहे, और और वो प्रचार कर रहे हैं, और सब भक्त लोग, लाखों लाखों भक्त उनके साथ क्या कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं। यह देख के हमारे जगन्नाथ मिश्रा खुश भी हुए, दुखे हुए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी सन्यास हो गया, हरि बोल, तो मेरा दुखित हो गए, और सची को बोलने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा। क्या हो गया, क्या हो गया आपको, क्या बोला, ऐसे मैं सपना देखा, हाँ, कि हमारा बचवा क्या ले लिया, बोला हट, इन निमाई इतना सुंदर पढ़ाई कर रहा है, ग्रामर में एब्जॉर्ब है, क्या सन्यास लेगा। बोले अरे तुम टेंशन मत लो, हमारा बच्चा को पढ़ाई नहीं कराएंगे, ये भी देख रहा है, इसे पढ़ रहा है, पढ़ेगा ना, ये भी पक्का है 100% सन्यास ले लेगा। बोले नहीं नहीं, बोले देखो तो सच्ची बात बोलती है, अगर आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो फिर इसको शादी कौन करेगा इससे, हाँ, कौन अपना बेटा बेटी देगा। बोले अरे मूर्ख, तुम पगली रह जाएगी। बोले क्यों। बोले अरे सब कुछ भगवान डिसाइड करते, कृष्ण पोस्टा है वही डिसाइड करते, हाँ, सब ऐसा नहीं होता कि पढ़ा लिखा का अच्छा शादी नहीं होता। हाँ देखो हम ही को देखो, इतना बढ़िया पढ़े लिखे, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं रहता है, घर एकदम निर्धन है। ओ बेटा देखो फटीचर लोग को, एक उसको कखा का सही से नहीं आता, 1000 लोग उसका द्वार में से खड़ा रहता है, तो तुम फिर भी नहीं समझी, सब भगवान डिपेंडेंट है। इसलिए भगवान चाहेंगे तो हमारा बड़ा बिना पढ़े भी वो बढ़िया से रहेगा। लेकिन वो आधा फिलोसफी बोले, अगर भगवान चाहेंगे तो ऐसे भी वो संन्यास लेगा, समझ रहे, पढ़ा हो नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी है, तो बोले कि नहीं इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, तो बोले जो हम बिठा के खिलाएंगे इसको, हम इसको क्या करेंगे। बहुत बार होता है, तो मेरे पेरेंट्स भी जब एक बार बीएचयू आए ना, तो उनको लगने लगा कि थोड़ा सा हरे कृष्णा हो रहा है, हम अपना लॉकर वॉकर कुछ दिखाए नहीं, तो हम बोले, थोड़ा उनको समझ में आया कि इसका थोड़ा सा बैटरी समझ रहे ज्यादा चार्ज हो गया, तो बोले बेटा तुम चलो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करे जरूर। बोले पढ़ाई लिखाई कैसे नहीं करेगा, हमको पढ़ाई तो बता सकती। बोले देखो हम लोग तो बैठेगा के खिलाएंगे जीवन भर, हम बोले नहीं, बहुत प्रेशर डाले मेरे पहले कि दिमाग लाया, कैसे क्या हुआ मेरे को याद नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर डाला गया था वैसे कि तुम छोड़ छाड़ के चलो, बिठा के तुमको जीवन भर खिलाएगा। तो चेतन बाबू पिताजी ने क्या क्या उनको बोला कि तुम चलो जीवन भर बिठा के हम तुमको खिलाएंगे। तो चेतन बाबू को पढ़ाई बहुत शौक था करने का, तो जब उनका पढ़ाई बंद कर दिया, वो बेटा को बोले बेटा आज से तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करे। अब चेतन बाबू को अंदर से बहुत, लेकिन पिताजी का आदेश को काटे, लेकिन वो कुछ करने को नहीं था, तो गुस्सा आ गया, तुम क्या करे नहीं करे, तो घर में पूरा घर तोड़ देते थे, और क्या होता रात भर घर से बाहर जाके बदमाशी करते, किसी का घर में बैल बन के घुस जाएंगे, उसका फसल सब तोड़ देंगे, समझ रहे हैं। और तो खुद गुंडा थे और बाकी लोग को भी गुंडा को इकट्ठा कर लिया, सब लोग मिलकर एकदम पूरा पूरा गांव को तहस देंगे और घर तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन सच जगन्नाथ मिश्रा पता चलता था सब, बोलना कुछ ऐसे, तो बड़ा गुस्सा आता है, मेरे को पढ़ाई क्यों नहीं करने देते। तो एक दिन चेतन बापू को बड़ा गुस्सा आया, एक दिन जगन्नाथ मिश्रा कहीं गए थे घूमने के लिए कुछ काम से, तो सची में आती घर में, और जाके पहले मिट्टी के बर्तन में क्या होता था कुकिंग होता, और फिर बर्तन कुकिंग होने के बाद फेंक दिया था, तो काला लग जाता था नीचे में, तो सब फेंका हुआ था एक जगह हांडी ये सब, तो महापूजा के उसका हांडी के ऊपर बैठ गए, और सब बोले ए कहाँ बैठ गया, सब लोग माँ को कंप्लेन किया, सची माँ आपका बेटा कहाँ अशुचि जगह में बैठ गया ब्राह्मण होके। तो सची माँ अरे पगला कहीं का, बैठ गया कर नहाओ चलो चलो।
शुद्धि हो, तुमको बुद्धि नहीं है, इतना बड़ा होगा तुमको बुद्धि नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, क्या शुद्ध स्थान है अशुद्ध स्थान है। महापू पाँव से घुमा के बैठ। जो लड़का पढ़ाई नहीं करता उसको क्या पता चलेगा क्या समझ रहे, तो हमको पढ़ाई नहीं करा रही, हम क्या करें। बोले ए पागल के, हम नहीं उतरेगा, उतरो। अब सब तो भीड़ आने लगा गाँव का, क्या हो गया, अरे क्यों बैठा है, पता चला इसको पढ़ाई नहीं करे। सब बोले पगली है क्या तू सच्ची में यार, हाँ तू बुद्धि नहीं है। इधर तो हम लोग का बच्चा नाक पे दम कर देते, पढ़ ले बेटा, पढ़ता नहीं है, ट्यूशन फी देते, ये करते, जान निकल जाता, फिर बचवा पढ़ता नहीं, सिर्फ मोबाइल चलाएगा दिन में। और इधर तुम्हारा बच्चा पढ़ना चाहता है, इतना बढ़िया बच्चा, फिर तुमको कोई कौन गलत एडवाइस दिया, कौन तुम्हारा माथा खराब कर दिया कि बच्चा पढ़ने नहीं दे रही है। हाँ साधु जी कैसे होगा इस बेचारे का। फिर सच्ची में आप बोली क्या करेगा, सच्ची में खूब समझाई, लेकिन चेतन बापू बोली नहीं, आफ्टर ऑल मैं क्या हूं, परम शुद्ध हूं। आत्मा क्या होती है, शुद्ध होती है, आत्मा को कोई इंप्योरिटी टच नहीं कर सकती है, ये मिट्टी उट्टी कुछ नहीं करो। भगवान दत्तात्रेय का फिलोसफी बोलने लगे, लेकिन माँ को कुछ समझ में बोले कि देखो मैं परम पवित्र हूं, मुझसे लग के सब कुछ पवित्र हो जाता है, समझ रहे। लेकिन सच्ची में आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। यानी और फिर शाम को उसको जबरदस्ती टांग के लेके आई, नहलाई धुलाई। अब फिर जगन्नाथ मिश्रा को लोग कंप्लेन किया कि पागल हो गए क्या, हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, बच्चा पढ़ना से फिर भी आप नहीं पढ़ने, जो भगवान चाहेंगे वही होगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे। तो जगन्नाथ मिश्रा बोले ठीक है आप लोग जैसा बोलेंगे, उनका पढ़ाई फिर से चालू करवा दिए। और एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्रा पढ़ाई जब चालू करा दिए तो उनको कभी कभी सपना आता था। तो एक दिन बीरह से वो जगह छोड़ के, अब जब जगह छोड़ के चले गए तो इतना रोए चेतन महाप्रभु। जिस प्रकार से दशरथ जी जब चले गए, न्यूज जब मिला था राम जी को, तो राम जी इस प्रकार से रोए थे, वैसे ही कौन रो रहे थे, हमारे चेतन महाप्रभु। उन्होंने सब भक्तों को ये सब वर्णन आपको चेतन मोस्टली चेतन भागवत में नहीं है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर बोले मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, समझ रहे, बहुत ही पेनफुल है। और चेतन चेतामित में भी नहीं, शायद लोचन दास का चेतन मंगल में उधर शायद उन्होंने डिटेल बताया कि महाप्रभु एकदम बैठ गए अपने सबको लेके फैमिली, और बोले हम लोग बेस्ट अपने पिता का सेवा कर सकते हैं कीर्तन करके। तो महाप्रभु बहुत कीर्तन किए लास्ट के राउंड। अब कीर्तन करते हुए क्या किए, अपने पिता का संस्कार किए। और माँ पूरी घबराई, माँ बोले माँ तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूं ना, मेरे रहते हुए तुमको कोई कमी। वुमेन को बहुत शेल्टर लगता है, वुमेन नीड शेल्टर, तो माँ को बहुत आश्वासन दिए। उसके बाद सच्ची में आगे एक ही आसरा था, कौन, चेतन महाप्रभु। भाई एक ही बच्चा था तो दिन रात उसका सेवा करती रहती थी। और चेतन महाप्रभु ऐसे सच्ची में वो यशोदा, मतलब समझ रहे ऐसा पोजीशन मिलना इतना पुण्य। तो चेतन महाप्रभु जो करते थे बेचारे टॉयलेट कर लेते थे। एक बार क्या हुआ, चेतन महाप्रभु बोले माँ जो चाहिए तुरंत दो, मतलब उनको तुरंत चाहिए। तो एक बार बोले माँ मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, मेरे को साथ तेल दो और अम्लकी दो, मैं गंगा पूजा करके आऊंगा। बोले बेटी मैं जस्ट लेके आ रही हूं। क्या बोली, लेके आ रही हूं, जस्ट लेके आ रही हूं, रेडी क्यों नहीं। अरे क्या तरीका है, फर्स्ट टाइम मेरे को समझ में नहीं आया कि वहां पूरा गुस्सा आ गया। वो बोले कौन, हमें जस्ट लेके आ रही, जस्ट आई विल ब्रिंग बेटा। पूरा गुस्सा आ गया वहां कि माला लेके आ रही हूँ जस्ट बाजार से। बोली लेके आ रही हूँ कैसे बोल दी तू। वहां पर ऐसा गुस्सा आ गए, बोले तुम लेके आएगी, हाँ तुम लेके आएगी, इतना लेट कैसे हो गया, मतलब हमको तुरंत चाहिए था, मतलब कहीं में कोई बोले माला चाहिए, ठीक ले आ देते भैया, कोई दो संदेश चाहिए, लेके आता भैया नीचे से, लेके तुम आएगा। पूरा गुस्सा गए और घर में जितना सामान था दही का पकड़ तोड़ दिए, घी बेलोना घी तोड़ दे सब तोड़ ताड़ के एकदम
पूरा एकदम फॉर्म में। फिर देखे सब घी गिर गया, फिर दाल का डब्बा गिरा दिए, गेहूं का डब्बा, आटा फटा सब गिरा, तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद फिर देखे कुछ नहीं बचा, तो फिर क्या किए, घर में जो बेड उठा जो सब तोड़ने लगे। फिर उसके बाद घर में कुछ नहीं हुआ, घर के 12 घरे को मारने लगे। फिर देखे आसपास पेड़ था, पेड़ ठोकने लगे। और फिर कुछ समझ में आया, कुछ नहीं बचा, जमीने में ठोकने, मार देंगे जमीने को, समझ रहे। इस प्रकार से वो क्या कहे, अभी कोई नहीं मिला तो जाके सो दो। और सची में जल्दी जल्दी जाके माला लेके आई, सब प्लेट रेडी की कि जब जागेगा तो जागे। फिर महाप्रभु बोले बेटा जाओ अभी गंगा में आगो नहा के आ जाओ। ठीक है ठीक है। और महाप्रभु को एम्बेरसमेंट फील हुआ, रहे क्या किया मैं, क्या किया मैं। और सची में बेचारी तुरंत प्लेट रेडी करके रखी, और बेचारे से जाके आए। फिर आए नहा धो के, आने के बाद विष्णु का पूजा किए, फिर उसके बाद तुलसी को पानी दिए, उसके बाद फिर भोजन करने बैठे। तो माँ उसको खिलाई, बेटा तूने सब पूरा घर तोड़ दिया, अब कल क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, अब तो घर में कुछ नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहे माँ, भगवान कृष्ण है ना, सबकी रक्षा करते हैं, वो पोसता है, वो मेंटेनर है, वो देंगे, टेंशन क्यों ले रही है, समझ रहे। और निकल गए अपना खा पी के बाहर। और फिर घूम के आए और माँ के हाथ में 2 तोला सोना दे दी, समझ रहे। माँ देखी, बोले माँ ले ले, भगवान ने भेज दिया, समझ रहे। और माँ सोची बेटा चोरी करके लाया कि उधारी नहीं लाया, कैसा मेरा बचवा है, जब भी कुछ गड़बड़ करता है तो सोना ले आता है। कहाँ से लाता है भगवान ने जान। तो 10 दुकान में दिखाई कि सच्चा सोना है कि नकली सोना है, तो बोला सच्चा सोना, समझ रहे। तो इस प्रकार से महाप्रभु अद्भुत अद्भुत लीला कर। तो उसके बाद अब महाप्रभु थोड़े और बड़े हो गए, समझ रहे। उससे पहले उनका स्कूल में एडमिशन करा दिए थे पिताजी, गंगादास पंडित के स्कूल में। गंगादास पंडित पिछले जन्म में सांदीपनी मुनि थे। तो उनको बोले कि मैं अपने बच्चे को आपके पास सौंप रहा हूं, बोले आप टेंशन मत ले, मैं अपने बच्चे ऐसा ही रखूंगा। और महाप्रभु एक दिन में जो सिखाते सब सीख जाते थे, एक बार सुन लिए तो पूरा याद हो जाएगा। और उसके बाद गुरुजी को भी हरा देते, समझ रहे। और गुरुजी बोले मेरा बेस्ट स्टूडेंट यही है, जबरदस्त स्टूडेंट, समझ रहे। अब माँ सबके साथ महाप्रभु क्या करेंगे, आर्गुमेंट। तो उनका एक सीनियर भाई स्टूडेंट था वहां पर, 2-3 साल सीनियर थे, मुरारी गुप्ता, समझ रहे। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट था। तो महाप्रभु अपना टीम बनाने लगे, समझ रहे। सब लोग जो उनका सुनेगा उनका टीम में, और जो नहीं सुनेगा उसको तोड़ देते थे। बेटा तुम सुने किसी ने मेरा। तो गंगादास तो गुरु थे, वो अपना भी चेला बनाते थे महाप्रभु, समझ रहे। तो सब लोग महाप्रभु का सुनता था। तो एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जब सबको डिफीट कर देते थे तो सब लोग मान लेता था भाई। तो मुरारी गुप्ता उनसे ज्यादा दूर रहता था। तो सोचता था बचवा, मतलब जैसे वो 4th ईयर में, तो बचवा 1st ईयर में था, सोचते थे, समझ रहे। 2nd ईयर में था तो सोचते 2nd ईयर का बच्चा है, जूनियर है को बाद, तो कुछ बोलता था, इतना सीरियस नहीं लेते। ठीक है हम 4th ईयर में, तो 2nd ईयर है, अब 2nd ईयर का बच्चा कोई बोलेगा ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे हम, ठीक। तो चैतन्य महाप्रभु बच्चा लोग के साथ कोई डिबेट वेट करते रहते, तो वो ज्यादा सीरियस। एक दिन महाप्रभु उसको बुला लिया, वहां पर गाली खूब देते थे, समझ रहे। कि बेटवा लोग जो अपने आप को बहुत समझता है, पंडित को बेटा व्याकरण का कख का आता नहीं और अपने आप को पंडित समझता है, समझ रहे। हमरे पास आओ ना बेटा, तोड़ देंगे हम के। मुरारी को बड़ा गुस्सा, इतना घमंड क्या करता है। फिर कुछ बोलते थे, ठीक है 2nd ईयर अभी, समझ। तो बड़ा गुस्सा आता था मुरारी को कि बेटा ये। तो एक दिन मुरारी सामने मिल गया और महाप्रभु एकदम उसको डोज देने लगे कि कोई है दम माइकल लाल जो हमसे आके आर्गुमेंट करो। कोई महाप्रभु के सामने कोई आएगा, महाप्रभु पूरा तोड़ ताड़ देंगे, उसी को बोलेंगे। तो महाप्रभु बोले कोई है मेरे पास जो आके आर्गुमेंट करे। तो कौन बोल, कोई बोला। तो मुरारी बोला ठीक है तुम इतना प्राउड क्यों हो गया, आओ तुम पूछो, हम लोग डिबेट करते। बोले क्या पढ़ के आया तुम आज, बोलो। तो अपना बताया, और वहां पर पूरा ताड़ तड़ाने तोड़ दिया, समझ रहे। क्योंकि वो भी तोड़ना चालू किया, समझ रहे। भक्त भगवान दोनों में क्या हो रहा है, समझे। भगवान भी नहीं जीत रहे, भक्त भी। मुरारी गुप्ता भी एकदम लगल है, वो भी लगल है। लेकिन फिर फाइनली उसको लगा था बेटा ज्यादा देर नहीं चलेगी, पावरफुल आदमी बैठा है, समझ रहे। फाइनली एक समय उसको धीरे धीरे लगने लगा कि भाई सक नहीं पाएंगे। तब तक महाप्रभु ने क्या किया, उसके सर पे हाथ,
और जैसे सर पे हाथ रखा उसको डिवाइन एकदम, वो बोला कि लाई ये आदमी को, नॉर्मल आदमी, इसके पास से पढ़ने में कोई नुकसान, इतना नॉलेजेबल है, इसी के समर्पित हो जाए। बोलते मैं भी तुम्हारा स्टूडेंट बनता हूँ भाई, समझ रहे। तो इस प्रकार से मुरारी भी क्या बन गए, उनके स्टूडेंट बन गए। उसके बाद महापो और एक दिन गंगा में गए नहाने के लिए, लक्ष्मी प्रिया भी वहां पर नहाने के लिए। तो लक्ष्मी प्रिया लक्ष्मी जी का पार्ट एक्सपेंशन थी, तो वो भी नहाने के लिए गए। और वो चैतन्य महाप्रभु को देखी, चैतन्य महाप्रभु उनको देखे, तो चैतन्य महाप्रभु देख के उन्होंने मन में प्रणाम किया, मन में सबके सामने। लेकिन और महाप्रभु भी देख तो इटर्नल एसोसिएशन मिल गए। फिर महाप्रभु जब वापिस आए अपने घर, जब आ रहे थे तब तक एक वनमाली घटक नाम का व्यक्ति था जो मैच मेकिंग करता था। तो सची मैया के पास गया और बोला, माँ एक बहुत अच्छी आपका लड़का बड़ा हो गया, उसका शादी उदी नहीं करेंगे? समझ रहे, एक अच्छी लड़की है मेरे माइंड में, एक वल्लभाचार्य है, उनकी लड़की है, खूब सुंदर है, खूब अच्छी है, एकदम आपके निमाई के लिए मैच है। तो सची मैया बोली, अभी तो मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बाप है ही नहीं उसका, थोड़ा सा उसको स्टेबल हो जाने कैरियर में, समझ रहे, सब पढ़ाई लिखाई कर लेते तो बाद में देखते। कि उनको पता है ना चैतन्य बाबू शादी करना चाहते हैं, कि अभी पढ़ाई लिखाई में बिजी थे। तो बोले कि अभी छोड़ दो भाई उसको। तो बेचारा निराश होकर चला गया। अब किसी का बात कट जाए तो फिर रास्ते जाते चैतन्य बाबू मिल गए, तो प्रणाम किए, कैसे आप, किधर से जा रहे हैं? बोले आप ही घर से आ रहे, हम आपका माँ को एक रिश्ता प्रपोज करें, माँ आपका काट दिए। फिर महाप्रभु आप कुछ बोले नहीं, महाप्रभु कुछ बोले नहीं, चुपचाप आ गए। फिर माँ के पास आए, बात हो गया, माँ वनमाली जी कुछ बोला, आप काट क्यों दी? तो सच्ची में अपना खुश हो गए, तुरंत घटक को बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ, समझ तुम रिश्ता का बात करो, समझ रहे। फिर रिश्ता का बात हुआ, वल्लभाचार्य के पास वनमाली घटक की बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा बच्चा कभी आपको वैसा वर मिलेगा नहीं, समझ रहे। आप क्या कीजिए, अपने बच्चे की शादी कर सकते। बोले इससे बढ़िया तो वर मिलेगा नहीं, इतना सुंदर निमाई है, इतना सब कुछ गुण संपन्न है, लेकिन मेरा एक चिंता है, और पैसा नहीं, समझ रहे। हम केवल 5 पान का पत्ता देके शादी कर पाए। बोले उसका टेंशन मत लीजिए, उस तरह के गुड न्यूज दे दिया किसको, सच्ची माई को, और पूरा क्या हो गया, बेड पार्टी रेडी हो गया, फिक्स रेडी हो गया, डेट मुहूर्त निकल गया। अब फिर एक दिन जो अधिवास के दिन, शादी जिस दिन था उसके एक दिन पहले अधिवास हुआ, और कौन निकले, महाप्रभु निकले एकदम दूल्हा बन के एकदम, समझ रहे। और फिर उधर वल्लभाचार्य ने उनको वेलकम किया। फिर उसका क्या हुआ, 7 फेरा लिया गया, उनको उठा के साथ भगवान को फेरा लिया गया। फिर उन्होंने माला भगवान के चरण में अर्पित कर दिया, समझ रहे, वरमाला सब हो गया। उसके बाद सब लोग वापिस आए, तो सची मैया आरती दिखाई बहू को, और जब लोग देखे इतना सुंदर कपल है, कोई बोलने लगता शिव पार्वती है रे भाई, कोई बोलता नहीं नहीं हमको लग रहा है इंद्र और सची है, कोई बोलता है मदन और रति है, कोई बोलता लक्ष्मी नारायण है, समझ रहे। इस प्रकार सब लोग। और फिर जब घर में आ गई लक्ष्मी प्रिया, तो घर इतना सुंदर हो गया, समझ रहे। और लक्ष्मी सची में देखने लगी कि कहीं कहीं पर बीच बीच में रोशनी दिखता था घर में, तो घर चकाचौंध हो जाते, कहाँ से रोशनी आ रहा है। कभी कभी घर में पूरा पुष्प का सुगंध आता था एकदम लोटस का। तो समझ गए कि मेरे घर में कौन आ गई है, लक्ष्मी आ गई, साक्षात लक्ष्मी जी आ गई, और पूरा अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से चल रहा था। तब तक एक दिन वहां पर कौन आ गए, ईश्वरपुरी आ गए। तो ईश्वरपुरी शांतिपुर में आए अद्वैत आचार्य घर में, और आके बैठ गया शांति से। तो चेहरे में बड़ा तेज था। तो किसी ने पूछा आप कौन है? बोले मैं एक छोटा शूद्र आदमी हूं, मैं आपका शरण लेने आया हूं, समझ रहे। मैं शूद्र, लोली शूद्रा, शूद्र जीव हूं मैं। लेकिन अद्वैत समझ गए ऑर्डिनरी आदमी नहीं लग रहा। तब तक मुकुंद भी वहां पर थे, वो भी समझ गए ऑर्डिनरी। तो उन्होंने कृष्ण का एक भजन गा दिया, ग्लोरी का, कैसे कृष्ण कृपालु है ये है। और जैसे वो भजन गाया, तब तक मतलब ईश्वरपुरी ने सुना, तो उनका क्या बोलता है, कृष्ण के प्रति प्रेम बाहर, वो नाचने लगे, रोने लगे एकदम। सब समझ गए, कोई मतलब कैसे आपको ऐसा भाव आया। तो पता चला ये माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य कौन, ईश्वरपुरी। तो सब लोग एकदम पागल हो गया, ईश्वरपुरी आए। ईश्वरपुरी रोज क्लास देते थे शाम को, तो उधर गदाधर पंडित, उन्होंने एक बुक लिखा था कृष्ण लीला में, उस पर क्लास देते थे।
और चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े पंडित थे लेकिन वो भी जाते थे क्लास। और ईश्वरपुरी को बहुत सम्मान करते थे। उनको एक दिन बोले कि मेरे घर में प्रसाद लीजिए चलिए, तो फिर प्रसाद लेके सचिव मैंने बहुत अच्छा कुकिंग किया। बोले कौन यार? बोले मैं निमाई पंडित हूँ। ओ तुम ही निमाई पंडित है? खरी तुम्हारे तो बहुत नाम सुने। फिर निमाई पंडित फेमस हो गए थे, सबको डिफीट विफीट करते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला तुम निमाई पंडित है, तुम तो बहुत टैलेंटेड है, मैं एक बुक लिखाऊंगा थोड़ा एडिट कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वैष्णव लोग का लिखा हुआ को मैं एडिट, क्योंकि वैष्णव लोग को तो भगवान का गुणगान करे और भगवान के द्वारा प्रेज, भगवान इसमें मिस्टेक उस्टेक देखते, अगर मैं मिस्टेक देखूंगा तो अपराध लग जाए, समझ रहे? बोले नहीं वो ठीक है, वो सब सही है, लेकिन बहुत खुश हुए ईश्वरपुरी। बोले लेकिन प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा भाई, दुनिया के लोग तो सब भक्त नहीं, तो उनको। एक दिन महाप्रभु क्लास कर रहे थे और ईश्वरपुरी को समझाए थे, तो एक वर्ब था, समझ रहे? तो महाप्रभु बोले आत्मनेपदी नहीं होगा, परस्पर पदी होगा। तो बोले ठीक है। तो अगले दिन मैं जब चैतन्य वापिस आया तो फिर क्लास में ईश्वरपुरी ने बोला नहीं, एक्चुअली मैं रात भर में कंसिडर किया ये आत्मनेपदी हो, समझ रहे? और चैतन्य महाप्रभु एक शब्द भी नहीं बोले। जो आदमी के सामने कोई कुछ बोल देगा वो काट देंगे, 2+2 4 बोलेगा काट के 5 कर देंगे। मतलब आज तक किसी के सामने वो हेम्बल नहीं बने, समझ रहे? जो बोलेगा काट देंगे, समझ रहे? और जो बोलेगा स्थापित कर देंगे। लेकिन he accepted defeat from the hands of ईश्वरपुरी। तो इस प्रकार से महाप्रभु, और महाप्रभु अभी स्कॉलर का लीला करे, दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर थे वो, और भक्त लोग दूर रहता था उससे कि मिलेंगे इधर उधर का बात करेंगे, सिर्फ महाप्रभु ग्रामर का, इसका भक्ति का बात। तो रास्ते में कोई आ जाएगा, मुकुंद नाम के भक्त जाते थे, उसको रोक लेते थे। तो तुम बहुत जानता है, हाँ बताओ तो, जानता होता है नहीं कुछ, और फिर उसको हरी बोल चटनी कर देगी, समझ रहे? तो भक्त लोग बड़ा पसंद नहीं था कि भाई कुछ कृष्ण कथा करो, क्या है सब स्कॉलरशिप। तो मुकुंद दूरे से भाग जाता था। एक दिन मुकुंद रास्ते से जाया था गंगा स्नान या सब कुछ करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु बीच में खड़े थे, 100 मीटर दूरे से दूसरा रास्ता पकड़ के भाग गया। महाप्रभु गुस्सा आ गए, बेटा कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा? महाप्रभु कहाँ जा रहा हूँ, हाँ किधर जा रहा हूँ, कहाँ चला गया हो, रास्ता क्यों बदल दिया? काम होगा, कुछ भूल गया होगा, बोल नहीं गया हूं। वो भक्त है, कहा है वो, बोले वहां पर अप्रिशिएट करे गाली देके, हाँ वो भक्त हुआ है, हाँ वो हमारे पास क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम प्रजल्पा करते हैं और उसको पसंद, वो केवल कृष्ण कथा करना चाहता है। एक दिन हम ऐसा भक्त बनेंगे कि पूरा दुनिया में सब मुकुंद भी मेरे पीछे पीछे है, समझ रहे? ऐसा भक्ति करेंगे हम। और भक्त लोग को समझ नहीं पाए, उनका जो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट है, उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन महाप्रभु डिक्लेयर करे कि मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा, बोलते ब्रह्मा और शिव भी मेरे पीछे पीछे घूमे, मतलब हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य भी मेरे पीछे पीछे। तो महाप्रभु सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। और कभी कभी महाप्रभु क्या कहे, एक बार, अब उनके अंदर में तो कृष्ण प्रेम लेके अभी स्कॉलर का लीला करे। स्कॉलर का लीला बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? क्योंकि महाप्रभु दिखाना चाहते थे भक्ति इज नॉट फॉर सेंटिमेंटली। कुछ लोग सोचते भक्ति उनके लिए जो उतना पढ़ लिख नहीं सकते, जो ज्ञान, बहुत बार बंगाल में क्या कंसेप्ट है, ज्ञानी और हायर, जो लोग शास्त्र को समझ नहीं सकते ना, वो लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो मेनी टाइम पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट ज्ञान इज हायर एंड भक्ति इज इंफीरियर। भक्ति इज फॉर दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड फिलॉसफी। तो महाप्रभु उस समय सबसे ज्यादा वैल्यू था समाज में, सतुण में समाज था थोड़ा, तो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ा डिबेट कर सकता है उसको सबसे टॉप। आजकल तब बॉडी लेवल पे ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे आजकल क्या जिसको बहुत माना जाता है, शरीर का जिसका सुंदरता है वही ग्रेट, ड्रामेटिस्ट लोग सबसे ऊपर माना जाता है, उस समय वो लोग को सबसे इंफीरियर माना जाता है। बट उस समय अभी वो लोग सबसे ज्यादा किसको मान रहे ऊपर, उसको मान रहे थे, समझ रहे? तो आजकल का जैसे मान लो बेस्ट कौन है, क्रिकेटर, एक्ट्रेस, ये सब है। हाँ तो अभी मान लो अमिताभ बच्चन या कोई मान लीजिए आजकल का बेस्ट एक्ट्रेस है या एक्टर, कौन है पता नहीं, तो जो भी होंगे, अगर बेस्ट एक्टर कौन है अभी करेंटली, हाँ शाहरुख खान। हमारे शाहरुख खान
एक्टिंग करके बहुत अच्छा टॉप एक्टर का अवार्ड पाके फिर वो बोलता है एक दिन कि मैं आप लोग सब आइए, मैं आप लोग को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दूंगा, मेरे हृदय की बात बोलूंगा। और बोले कि एक्चुअली में सब एक्टिंग फैक्टिंग बेकार है, रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू चैंट हरे कृष्ण। सब लोग एकदम लाखों करोड़ों लोग भक्त बन जाएगा। या मान लीजिए क्रिकेटर है कोई, टॉप क्रिकेटर इंडिया का, कौन है क्रिकेटर टॉप में? कोहली। तो मान लीजिए कोहली आके अगर बोलता है कि हम आप लोग को अपना सीक्रेट बताएंगे, समझ रहे हैं, तो लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल विल हियर फ्रॉम हिम। एंड करोड़ ऑफ लोग को बोलता है कि अरे मैंने जीवन ही डंडा से मारने में बर्बाद कर दिया अपना जीवन, मेरे को अपना डंडा सर फोड़ लेना चाहिए, मैं मनुष्य जीवन बर्बाद कर लिया। बोला क्या हो गया आपको? बोला अरे मनुष्य जीवन में हरे कृष्णा करने के लिए हरे कृष्णा करना चाहिए। तो लोग पूरा एकदम हरे कृष्णा करना फेमस हुए। तो वैसे महापुरुष समय के टॉप स्कॉलर बने, कोई नहीं, उनको गंगादास पंडित किसी कोई नहीं हरा सकता था, समझ रहे? वो दिग्विजय पंडित आया, वो भी नहीं हरा पाए, ना पावरफुल दिमाग। एंड आफ्टर रीचिंग द जेनाइथ ऑफ scholarship, he said it's useless. He said this cannot make you happy. And then he took what? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. तो महाप्रभु सबको भक्तों, गदाधर को पकड़ लेते थे। गदाधर बहुत सॉफ्ट डिवोटी थे, उनको पकड़, तो बहुत आता है, बोले हमको नहीं आता, बोलो तो बोलता नहीं। एक दिन तो मुकुंद को पकड़ लिए, तो मुकुंद को भी बड़ा गुस्सा आता था, तो बड़ा बार बार चटनी करता भाग जाता था। तो एक दिन पकड़ लिए, बोले आज तुमको छोड़ेंगे नहीं बेटा, तुम भाग जाता काहे रे, हमको देख काय भागता है, हाँ कहा हो गया तुम, काहे रो बनता है? कुछ बोले नहीं कि भाई छोड़ दे, आपको गलती हो गया, आप पकड़ा गए भाई, गलती सब देखे नहीं इसको, बोल समझ रहे बेचारा, बोल बाप ऐसे निकला, वो बेचारा यही से निकला, मुझको पता है था, दूर से देखता भाग जाता, पकड़ा गया, अब क्या करे? तो बोलते कि तो बहुत दुख आता है, बोले हमको कुछ रहा, तो पकड़ ले, क्या करे? तो वो अभी मुकुंद नया टेक्निक लगाया, बोला देखो, सोचा ये व्याकरण का स्कॉलर क्या है, तो बोला हम अलंकार का क्वेश्चन करेंगे। तो बोले तो फिर चैलेंज हो गया, तो वो अलंकार का क्वेश्चन किया, समझ रहे? महापुरुष क्या जानता बताओ, तो अलंकार के बारे में बताने लगा। तो अलंकार के बारे में बताने लगा, तो सोचा महापुरुष तो अलंकार जानते नहीं है, वो तो ग्रामर जानते हैं। और महापुरुष अलंकार में उसको पूरा खंडन कर दी, धड़ 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 धड़, सब गलत, सब गलत। नहीं बाप बहुत देखा है, मतलब व्याकरण नहीं जानता है, ग्रामर अलंकार तो कभी सीखा ही नहीं जीवन में, कैसे बेटे इसको, समझ रहे? तो मुकुंद प्रार्थना गई, हे भगवान इतना बड़ा स्कॉलर अगर भक्त बन जाए तो क्या होगा, बहुत, तब इसका संग छोड़ेंगे नहीं, अगर भक्त बन गया तो अब रात दिन इसी के साथ। तो इस प्रकार से एक दिन श्रीवास पंडित बसते हुए मिल गए, और श्रीवास पंडित थोड़ा सीनियर थे, तो उनका मतलब उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन उतना सीरियस वाला नहीं, ऐसा मतलब उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था, समझ रहे? जैसे मान लीजिए जब कोई सेकंड ईयर है तो थर्ड ईयर के साथ थोड़ा खेल सकता है, मतलब समझ रहे? फोर्थ ईयर, लेकिन अब मान लो समझ रहे कोई मान लीजिए हमारे विनय पु आ जाए 2013 में, वो 10 साल सीधे, तो उनके साथ थोड़ा मजा कर सकता हो, तो थोड़ा समझ रहे? तो हमारे श्रीवास पंडित आए तो थोड़ा महापु संभल के थे, मतलब फिर भी बदमाशी तो करना है उनको। तो श्रीवास पंडित को बड़ा गुस्सा था कि बेटा हरे कृष्ण क्यों नहीं करता, तो उसको डांटने लगे, तुम हरे कृष्ण क्यों, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, हाँ तुम क्या के लिए टाइम पास कर रहा है, मरते समय क्या लेके जाएगा तुम, ऐसे करके खूब डांटने लगे, तुम हरे कृष्ण क्यों नहीं करता है? तो वहां फिर टॉन्टिंग करने लगे, बोले ठीक है, बोल रहे आपकी कृपा से हम भी करेंगे एक दिन, हाँ आपकी कृपा होगी तो हम भी एक दिन, मतलब टॉन्टिंग के बाद कोई समझ नहीं पा रहा कि वहां सही बोल रहे कि आप कृपा करेंगे तो एक दिन हम। तो इस प्रकार से वो फिर वहां पर घूमते रहते थे नवद्वीप में, जगह जगह, घर में किसी घर में घुस जाते थे, कोई भी दुकान वाले के पास पहुंच जाएंगे, एक कपड़े वाले के पास पहुंच गए, मेरे को अच्छा कपड़ा दो, तो सबसे बढ़िया कपड़ा दो, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, समझा? बोलता आप ले लो जो कपड़ा पसंद है, ये सबसे बढ़िया कपड़ा ले लो आप, तो लेकिन पैसा वैसा नहीं देंगे, मन में आया कहते देना नहीं यार मत, समझ रहे? फिर एक दुकान में इत्र वाला जो सेंट वाला दुकान में चले गए, बोले सबसे बढ़िया गंध दो तो मेरे को, पैसा कुछ है नहीं मेरे पास, कैसे देगा? तो दे देता है, लगा देता है, बोलते अगर
कल सुबह स्नान करने के बाद भी सेंट रहेगा ना, तब आप सोचिएगा पैसा देना है कि नहीं तो फ्री में कोई दिक्कत। सब लोग महाप्रभु को देना चाहता था। एक फिर ग्वाला के घर में पहुंच गए, दूध पिला दो, लेकिन तो वो लोग उनको बोले मामा मामा, मतलब चेतन बाबू क्या बोलने लगा, मामा मामा, समझ रहे। अब आप खूब उसके घर में दूध पीने लगे, समझ रहे। तो बोले यार तुम हम लोग के घर में खाओ, तुम ब्राह्मण है। बोला हम ग्वाला लोग घर में खाते हैं, समझ रहे, ये हमारा लीला है। फिर एक फ्लावर वाला के घर में पहुंच गया, उससे फ्लावर ले लिए और सब लोग पूरा खुशी खुशी महाप्रभु को दे रहे। घूमते 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 वो श्रीधर के घर में आ जाते हैं। श्रीधर का दुकान में रोज 2 घंटा झगड़ा करते थे। क्या करते थे, उनका आफ्टरनून प्रोग्राम था, 2 घंटा झगड़ा करने, समझ रहे। 2-4 दंड, एक दंड में 24 मिनट, मतलब 1-2 घंटा रोज। उसके दुकान में पहुंच जाएंगे, केला दो। वो रोज एक केला का बांस गाछ खरीदता था, उसको काटता था, उसका केला का मोचा खंडा केला लीव्स बेचता था। बहुत रीजनेबल रेट में बेचता था। 100 रुपये मिला, 110-20 रुपये में बेचता था। कुछ कमा, जो इतना कमाता था उसका मतलब 50 रुपये कमा, तो 25 रुपये तो गंगा मैया पूजा में कर देता खर्चा, चलो पूजा दो। तो कितना रुपया रेट है, 10 रुपया। बिल्डिंग ठोकेगा तुम, चोरी करके क्या करोगे, इतना कमाएगा तुमने भाई, ये बहुत सब कम है। स्विस बैंक में पैसा जमा करा, हमको पता है तुम एक दिन हम पूरा रेट मारेंगे तुम्हारे घर में, बेटा सबको दिखाएंगे तुम बड़े 1 नंबर चोर है। हाँ मेरे घर में भाई कुछ नहीं है, मैं धोती हर जगह फटा हुआ, देखो इसमें गांठ मारा, वो बेचारे उनके पास धोती था नहीं, तो जगह जगह छेदा हो जाता तो क्या करते गांठ मार के, देखो 10 तो गांठ है इसमें। और मेरा घर में ऐसा शेड भी नहीं है, उसमें पानी चूते रहता है। और उनका टोटल घर में एक ही टोपिया था, बोले एक ही पॉट था, उसी में खाते थे, उसी में सब कुछ करते। बोलते कहा मेरे पास कुछ है, छुपा के रखता है, हमको बोलता नहीं है। तुम बेटा 1 नंबर का ढोंगी है, दुनिया को दिखाता है कि हम बेटा कोला बेचने वाले, अब बेटा अंदर अंदर खूब पैसा रखता है। कहाँ मेरा पैसा है, चलो घर में देख लो कहाँ है कुछ, ज्यादा नहीं कर, फ्री में दो हमको, फ्री में दो। तुम कोई और दुकान में जाओ, और कोई कस्टमर दुनिया दूसरा दुकान देखो बहुत अच्छा दुकान जाओ, हम अच्छा कस्टमर का है, हम अच्छा दुकानदार क्यों छोड़ेंगे, हमको तुम ही पसंद है, तुम ही से लेंगे। बोले बाप हमको छोड़ दे, तुम इतना पैसा क्यों लेगा, 5 रुपया देंगे बस। 5 रुपया नहीं पोसाएगा, दुकानें तोड़ देंगे तेरा। अरे क्या करे, अरे भाई इतना सारा दुकान तुम ही से लेंगे। सुना है तुम बेटा गंगा का पूजा करता है, पैसा नहीं तो क्या करता तुम, कम कमाता तो गंगा में इतना बड़ा 25 रुपया गंगा को देता है तुम। और इधर हम गंगा के बाप है, गंगा हमसे निकला है, हमारा सेवका है, हमको चढ़ा। बोले बाप रे बाप, विष्णु विष्णु विष्णु, बच्चा ठीक है रे, गंगा में आकर तुम छोड़ो, तुमको बुद्धि इतना उद्दंड हो गया, चलो तुम हमको दो, नहीं छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई तुमको जो चीज ले लो, थोड़ा तुम निकलो यहां से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा दो। एक बात और पूछते हैं, ठीक है ना, कि तुमको क्या लगता है हम कौन है? आप बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। अरे पगला हम ग्वाला है, तुमको पता नहीं है। इस प्रकार से बाप वो क्या करते थे। एक बार एक सरगो गया, एस्ट्रोलॉजर मिला, बोले भैया थोड़ा हमारा हाथ वाथ देख के बताइए तो हम कहाँ थे पिछले जन्म में। तो गोपाल मंत्र करने लगा, गोपाल मंत्र से जिसका भी रूप रहेगा शुभ कृष्ण पिछले जन्म में मान लीजिए कुत्ता था, मान लीजिए तो फिर वो कुत्ता वाला रूप आएगा, समझ रहे। और तो उसके पास पोटेंसी था, और मान लीजिए हम छिपकली थे तो कोई हमारा देख के करेगा तो छिपकली दिखाई दे, समझ रहे। तो वो देखने लगा, गोपाल मंत्र जप करने लगा, गोपाल गोपाल गोपाल, और देखा कि क्या हो गया कि एकदम अंधेरा हो गया। और देखा कि जेल में वसुदेव है, देवकी है, और कौन बच्चा प्रकट हुआ। बोला नहीं ये सब नहीं देखना है, कृष्ण लीला नहीं देखता, मैं पढ़ता हूँ भागवत, इसका जरूरत नहीं, अभी मेरे को देखना है ये बचवा का। फिर मंत्र क्या, तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, दिमाग इधर उधर जा रहा है। फिर देखा तो देखा कि बचवा एडवाइस दे रहा है शंख चक्र गदा में कि मेरे को गोकुल में नंद के यहाँ छोड़ के आ, और भी छोड़ के आ रहे। ये सब लीला नहीं देखना है, कृष्ण लीला हो गया अभी, समझ रहे। तब देख रहा है
कि मत्स्य रूप आ गया, प्रलय हो गया, मत्स्य के रूप में भगवान मत्स्य सत्यवत का उद्धार करे। अरे ये लीला नहीं देखना है मेरे को, दशावतार नहीं देखना, अभी मेरे को क्या देखना है, फुट कंसल्टेशन से कर रहा है, कभी बड़ा रूप देख रहा है, कभी नरसिंह रूप देख रहा है, कभी बामन देव के रूप में लीला देख रहा है। कहा हो गया आज मेरा मंत्र को, समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे? फिर वहां बोलते कहा हुआ जी, कहा देखे आप, वो तुम दोपहर को आना, अभी हमारा थोड़ा सा मंत्र काम नहीं कर रहा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना सुंदर सुंदर लीला प्रकट करने लगे, किसी को समझ में आ नहीं रहा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीला है। एंड महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में भक्तों की खूब सेवा भी करते थे। एक दिन 20 सन्यासी आया और तुरंत उन्होंने बोला चलिए चलिए मेरे घर में प्रसाद, और लक्ष्मी प्रिया को बोले सबके लिए बनाओ। लक्ष्मी प्रिया सबके लिए प्रसाद बनाती है। तो महाप्रभु वाज वेरी एक्सपर्ट। एंड फिर उसके बाद थोड़ा दिन महाप्रभु सोचे कि हमें थोड़ा दिन धन कमाने के लिए बांग्लादेश चला जाता हूँ। तो बांग्लादेश चले गए, लाखों लाखों स्टूडेंट, ऑलरेडी यहाँ पर भी उनके हजारों स्टूडेंट थे, और जब वहां गए तो और लाखों लोग उनका स्टूडेंट, क्योंकि जो 12 साल में आदमी ग्रामर सीखता था महाप्रभु 2 महीना में सिखाए थे उसको, एकदम क्या बनाए थे, स्कॉलर बनाए। तो जब वहां वापिस आए तो पूरा सब लोग एकदम पूरा गिफ्ट दिया, इतना पूरा ट्रक लोड भर के। तो लक्ष्मी प्रिया भगवान के सेपरेशन में जी नहीं पाई, वो बॉडी लिव वापिस आए तो सच्ची में आगा मुंह लटका हुआ था, लेकिन देख नहीं रहे थे वहां पर सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे बहुत। वहां क्यों नहीं सब पता चला लक्ष्मी प्रिया, तो वहां पर बहुत बुरा लगा। और वो फिर पढ़ाई वढ़ाई करवाने लगे, फिर उनका दूसरा विवाह हो गया, और उसके बाद फाइनली महाप्रभु गया जाते हैं पिता का श्राद्ध के बहाने, और वहां पर जाके क्या लेते हैं, फाइनली वो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं, उनसे मंत्र लेते हैं। उसके बाद वो अपना स्कॉलर पास टाइम, अब वो भक्त का पास टाइम। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आदि लीला चैतन्य चैतामृत में खत्म हो जाता, समझ रहे हैं? नहीं, चैतन्य भागवत व्हेन ही टेक्स इनिशिएशन, शुरू में क्या बचपन और स्कॉलरशिप वाला लीला कहाँ पर है, आदि लीला, ये खत्म हो जाता, समझ रहे? तो विल कंक्लूड हियर विथ लास्ट स्टोरी कि कैसे महाप्रभु जब स्कॉलरली लीला कर रहे हैं। एक्चुअली चैतन्य भागवत का श्लोक से पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको श्लोक में इतना से कवर हो पाता, समझ रहे? इसलिए मैं सोचा कि अब टाइम बचा नहीं तो एक के बार में हम फटाफट कवर कर देते। लेकिन आप लोग कभी समय मिले जीवन में तो बंगाली सीखिए, और एटलीस्ट जीवन में एक बार चैतन्य भागवत पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाओं को सुनिए, अद्भुत है, कर्णों के लिए अमृत है। मतलब यू विल बिकम मैड। ये जो रस है, भौतिक रस, लड़की के प्रति आकर्षण, सब उड़ जाए। If you hear this divine pastimes of Lord, अद्भुत लीला है एकदम। यही रस हमारा भगवान दुनिया में सब लोग खोज रहे हैं, भगवान के गुणों का रस नहीं मिलने का कारण पीपल आर मैड और द फॉल्स ब्यूटी ऑफ द वुमन। I'll conclude with one story कि महाप्रभु एक दिन बैठे हुए कहा अपने स्टूडेंट के साथ गंगा तट, जैसे मैं बैठा आप लोग बैठे, ऐसे महाप्रभु बैठे और उनके साथ सब स्टूडेंट लोग, और रोज उनको हजारों हजारों स्टूडेंट उनके थे, और रोज 20-25 लोग आके सरेंडर करता कि हम भी आपके अंदर पढ़ेंगे। हम आप बोलते ठीक है आ जाओ। तो उनके हजारों हजारों स्टूडेंट, हम आप ऐसे बैठे हुए। तो वृंदावन दास ठाकुर इसका तुलना करें कि बड़े अद्भुत लग रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या लग रहे हैं, बड़े अद्भुत लग रहे हैं बैठे, और साथ में कौन बैठे सब, एकदम अद्भुत लग रहे हैं महाप्रभु। तो बोले मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक चंद्रमा। कैसे लग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और सब स्टूडेंट कैसे लग रहे हैं, तारा कैसे। फिर बोलते नहीं नहीं ये उपमा ठीक नहीं लग रहा, चंद्रमा में तो कलंक है थोड़ा, क्या क्या स्पॉट्स है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में एक भी स्पॉट। और दूसरा है कि चैतन्य महाप्रभु, चंद्रमा तो है वो कभी बढ़ता है घटता है, बट चैतन्य महाप्रभु हमेशा एकदम, वैसे ये उपमा ठीक नहीं है, दिस एनालॉजी नॉट। फिर सोचते लगता है बृहस्पति जी है, क्या है ये, किसके समान है, और ये सब देवता लोग बैठे, समझ रहे हैं? फिर बोले ये उपमा भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि बृहस्पति जी है वो केवल देवता लोगों को सिखाते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा बांट। बोले ये ठीक नहीं लग रहा। फिर थोड़ी देर बोलते आप तीसरा एक उदाहरण मिला, ये ज्यादा अच्छा लगता है, कामदेव के समान लग रहा है। कैसे लग रहे हैं, सबको आकर्षित कर लेते, एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस बॉय, इसलिए किसके समान लग रहे हैं। बोले ना ये भी बेकार। बोले क्यों, तो कामदेव किसी को आकर्षित करता है तो उसका हृदय चलता है। कामदेव को आकर्षित करता है, हृदय क्या होता है,
लेकिन ये बच्चा किसी को आकर्षित करता है तो पूरा उसका हृदय एकदम ठंडा ठंडा फूल, बोले एकदम अद्भुत, इसका दर्शन लेने से अनिर्वचनीय सुख मिलता है, वचन में नहीं बोलता, इतना सुख मिलता है, एकदम हृदय ठंडा कर देता है इसका दर्शन। इसलिए कामदेव से भी तुलना, तो एक मेरे माइंड में एनोलॉजी आ रहा है, वो सही लग रहा है। जिस प्रकार से कालिंदी के तट पे भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोपों के साथ खेलते हुए बैठते थे और सब लोग टिफिन खाते थे बैठ के, समझ रहे, तो उस समय जो कृष्ण लगते थे ऐसे ये बच्चा, और ये एनोलॉजी ठीक लग रहा है। हरि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के फेस्टिवल की आज हम लोग ये लीला, आदि लीला खत्म किए। कल हो सकता है हम लोग भगवान का इनिशिएशन से लेके संन्यास तक का लीला कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण।